हेलो बैंकर्स और वेरी वेरी गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। वेलकम बैक। स्वागत आप सभी का एक बार फिर से। और आज के इस सेशन के अंदर हम लोग समराइज करने वाले हैं यूनिट नंबर 25, विच इज इक्विपमेंट लीजिंग एंड लीज फाइनेंस, राइट। सो मॉड्यूल सी, जिसमें 3 यूनिट आपके, इस यूनिट के बाद आपका 2 यूनिट बचते हैं, ठीक है। सो दीज आर वर्किंग कैपिटल मैनेजमेंट इन डेरिवेटिव्स। आई होप अभी तक के पास्ट के सारे सेशन आप लोगों ने देख लिए होंगे, ठीक है। So let's have a quick look about the course content. So equipment leasing and lease finance. Again, very important unit because you'll see our same unit in your Indian economy and Indian financial system as well, right? So and if you talk about the examinations question, you'll definitely get number of question. Like for in case of AFM, you'll get at least 1 or 2 questions, and most of time it is around finance lease and operating lease, ठीक है। सो यही चीजें आपका IEN IFS के अंदर भी आपको देखने के लिए मिलेगी। सो वी हैव द बेसिक इंट्रोडक्शन, मीनिंग ऑफ लीजिंग, फीचर ऑफ लीज, टाइप ऑफ लीज, फाइनेंस लीज, ऑपरेटिंग लीज, rationable for leasing, content of a lease agreement, legal aspect of leasing, GST on lease transactions, income tax implications on lease of lease agreements, accounting of lease transaction, accounting of lease transaction in book of lessee and lessor, and we have leasing as a financial decision, right? So lease आपका let's say जैसे पास्ट में हमने कैपिटल इन्वेस्टमेंट डिसीजन आपका पढ़ा था, ठीक है। आई होप एवरीबडी रिमेंबर दैट पर्टिकुलर वन, ठीक है। सो दैट इज जनरली कि लाइक कि हमें कोई एसेट आपका परचेज करना चाहिए, या हम उसको अगर उसका टेम्परेरी यूज है या उसकी कॉस्ट बहुत ज्यादा है, सो वी हैव अनदर ऑप्शन दैट इज नोन एज लीज फाइनेंस। स्पेशली जैसे अगर हम लोग बात करते हैं इन केस ऑफ एयरलाइन कंपनीज। So let's say if there is a airline company, they do not buy the entire airline in others, ठीक है। वो पूरा जो एयरक्राफ्ट होते हैं उनको परचेज नहीं करते। They generally finance through those particular equipments or the airlines through some financing company or the from the manufacturer, right? So ऐसे ही आपका जैसे कोई let's say there is a IT company or there is a small company, कोई भी ऐसा जिसको कोई equipment चाहिए for a time being, for 3 months, 6 months, 5 months, so they can take that particular equipment on lease rather than buying. So खरीदना चाहिए या लीज पे आ लेना चाहिए? So that is, so it is an alternative source of finance for an organization. So इस तरीके से हम लोग जिसको आपका कंसीडर करते हैं। Why operating lease and finance lease is important? Because as per accounting standard 19 and Indian accounting standard 116, so जो आपका लीज है for accounting purpose they are categorized between two part, one is finance, another one is operational lease। इसीलिए बार बार आपका इन दोनों के ऊपर क्वेश्चंस आपको पूछे जाते हैं। इसके अलावा जैसे अदर भी आपका रेगुलर लीज, आपका सेल एंड लीज बैक, ऐसे डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स जिनको सबको हम लोग यहाँ पे समझने वाले हैं, ठीक है। सो अगर हम लोग बात करते हैं आपका लीज का, सो लीज फाइनेंसिंग इज पॉपुलर medium and long term financing option in which the owner of the asset, which is known as lessor, okay, owner of an asset grant another person the right to use asset in exchange of a periodic payments, ठीक है। so lessor and lessee, these are two parties, ठीक है। so let's say हमने किसी के घर को रेंट पे लिया, सो द ओनर ऑफ दैट पर्टिकुलर हाउस इज जनरली नोन एज लेसर, एंड जैसे हम लोगों ने उसको रेंट पे लिया है फॉर ऑफिस पर्पज इन अदर्स, सो विल कॉल दैट कंपनी विल नोन एज लेसी, ठीक है। अब ऑफिस स्पेस कई बार हमें रिक्वायरमेंट होती है, वी कैन नॉट बिल्ड दैट बिल्डिंग्स इन अदर, बहुत ज्यादा फंड्स की रिक्वायरमेंट होती है, सो वी जनरली गो विद द लीज एग्रीमेंट, राइट। सो द एसेट ओनर इज नोन एज लेसर and the user is known as lessee. A contract is to be made between the lessor and lessee regarding the term and condition of lease. After the lease period over, the asset goes back to lessor or the original owner of that particular one. अब यहाँ पे if it is operational lease, तो ये चीज आपका most of time apply होती है। If it is finance lease, so operational lease is short term in nature, finance lease is long term in nature। तो जहां पे आपका finance lease में the lessee they do have that right to buy purchase that particular asset at the end of the lease period। So we'll come to those particular point, ठीक है। तो थोड़ा सा आपका इसका हम लोग अगर हम लोग बात करें एज पर अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 116, बहुत इंपॉर्टेंट है।
और अकाउंट इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 116 एंड अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 19, ठीक है, जहां पे लीज के बारे में बात किया गया। A lesser shall classify each of lessee each of its leases as either an operating lease and or a finance lease। इसीलिए ये दो लीज आपका सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। इट मींस that accounting prospect lease can only be two types, one is operating and another one is finance lease। इसके अलावा भी जैसे commercial lease है, can be categorized under जैसे leverage lease है, domestic lease है, इंटरनेशनल लीज है, कैंसिलेबल है, नॉन कैंसिलेबल है, सेल एंड लीज बैक ट्रांजेक्शन है। ऐसे बहुत सारे टाइप्स आपको जो देखने के लिए मिलेंगे एंड वी विल गो थ्रू ऑल द टाइप्स, बट योर प्रायोरिटी शुड बी फाइनेंस लीज एंड ऑपरेटिंग और या ऑपरेशनल लीज आपका, राइट। तो अब अगर हम लोग सबसे पहले शुरुआत ही करते हैं आपका टाइप से। सो एज वी नो, एज पर अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 19 and Indian accounting standard Indian accounting standard 116। okay, so as per accounting purpose we have two type of lease, one is operating lease which is also known as short term lease, ठीक है, इसको हम लोग आपका short term lease भी बोलते हैं, ठीक है, which is cancelable in nature, and finance lease which is generally known as it is generally for long term, okay, so ये आपका long term lease है and which is नॉन कैंसिलेबल इन नेचर, राइट। बेस्ड ऑन अदर, अगर हम लोग बात करें जैसे डायरेक्ट लीज है, सेल एंड लीज बैक है, लिवरेज लीज है या अदर्स, इनके ऊपर हम लोग बात करने वाले। तो पहला आपका ऑपरेटिंग लीज या ऑपरेशनल लीज, ठीक है। सो देखो क्या होता है, ऑपरेटिंग लीज आर शॉर्ट टर्म इन नेचर। लेट्स से जैसे मैंने आपको एग्जांपल दिया कि देयर इज अ कंपनी जिसको एक मशीन का रिक्वायरमेंट था फॉर 3 मंथ्स और 5 मंथ्स, तो उसके बाद उस कंपनी का उस एसेट से या उस मशीन से इक्विपमेंट का कोई इस्तेमाल नहीं था। सो रादर देन बाइंग डिसीजन दे कैन गो विद द लीज एग्रीमेंट, वो किसी से उस मशीन को लीज पे ले सकते हैं फॉर द स्पेसिफिक टाइम ड्यूरेशन, एंड उसके बदले में दे हैव टू पे सम रेंट टू द ओनर और विच इज नोन एज लेसर, राइट। सो ऑपरेशनल लीज आर कैंसिलेबल इन नेचर, दे आर शॉर्ट टर्म एंड ownership belongs to the owner or the lessor, and जो आपका डेप्रिशिएशन एक्सपेंस है दैट इज अगेन लाइक फॉर द लेसी इट इज ऑपरेटिंग एक्सपेंस एंड फॉर the owner it is kind of they'll manage through the depreciation, right? So an operating lease is cancelable contractual agreements whereby the lessee agree to make periodic payments to the lessor, often 5 or fewer years, to obtain an asset in its services, ठीक है। तो ये आपका ऑपरेटिंग लीज। Finance lease, a finance or capital lease is a longer term lease than operational lease that is non-cancelable and obligate the lessee to make payment for the use of an asset over the predetermined period of time। जैसे मैंने आपको एग्जांपल दिया एयरक्राफ्ट का, ठीक है, इससे आपके जो एयरक्राफ्ट होते हैं दे जनरली, जो एयरलाइंस कंपनीज होती है दे जनरली take over those particular airlines on lease, and after some time they do have right to purchase that particular one at the lesser price from the market value, ठीक है, इस तरीके से। सो फाइनेंस लीज की अगर हम लोग बात करते हैं, सो फाइनेंस लीज आपका जैसे क्या क्या, द ओनरशिप ऑफ एसेट इज ट्रांसफर टू द लेसी बाय द एंड ऑफ द लीज टर्म, ठीक है, इसका अपोजिट आपका ऑपरेटिंग लीज होगा, ठीक है। ऑपरेटिंग लीज में ये आपका ऑप्शन नहीं होता, पहली चीज। दूसरा, the lessee has the option to purchase the asset at a price which is substantially lower than the fair value, and it's reasonably certain that the option will be exercised, ठीक है। तीसरा आपका, the lease term is for major part of economic life of the asset, जैसे कोई मशीन है उसका इकोनॉमिक लाइफ है 15 years, so usually it is for 15 years, ऐसा आपका जो रहेगा, ठीक है। The present value of minimum lease payment at the inception of lease amount to be a substantial fair value of the lease asset or more, ठीक है, simple सा। The lease asset is of such specialized nature in it can be used only for only by the lessee, ठीक है, उसको सिर्फ मतलब वो जनरली क्या हो रहा है कि इकोनॉमिक लाइफ तक लेके चल रहा है, तो उसको एक ही लेसी आपका इस्तेमाल कर रहा है, ठीक है। जैसे एयरलाइन का ही केस आप ले सकते हैं दोबारा से। the lessee has right to cancel the lease, the lesser losses sorry the lesser's losses due to the cancellation are borne by the lessee। अब जैसे जनरली इन जनरल
फिनेंस लीज आर नॉन कैंसिलेबल इन नेचर, बट हाँ ऐसा नहीं है कि ये कैंसिल नहीं किया जा सकते हैं, लेसी के पास राइट है वो कैंसिल कर सकता है, बट उसकी वजह से जो कैंसिलेशन हुआ है उसकी वजह से जो लेसर का नुकसान है दैट इज बोर्न बाय द लेसी। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ठीक है। द लीज हैज the lessee has a right to continue the lease for secondary period at a rent which is substantially lower than the market rent, ठीक है। जैसे रिन्यूअल्स आपके हो रहे हैं, जैसे आपका जैसे 5 years 10 years ऐसा जो आपका है, सो दे डू हैव दैट राइट, वो उसको दोबारा से आपका रेंट पे ले सकते हैं, और जो कहीं ना कहीं उनको आपका जो मार्केट रेंट है उससे थोड़ा सा लोअर पे वो आपका देखने के लिए मिलता है, ठीक है। सो दीज आर द फीचर्स ऑफ योर फाइनेंस लीज आपका, ठीक है। सो इसके अलावा भी कुछ और लीज आपके हैं, जैसे मतलब सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट आपका ऑपरेटिंग लीज और आपका एंड फाइनेंस लीज है। रीजन हमने समझा फॉर अकाउंटिंग पर्पस, ठीक है। So under the direct lease, a firm acquired the right to use an asset from the manufacturer. The ownership of asset leased out remain with the manufacturer itself. ठीक है, तो डायरेक्ट लीज आपका सिंपल सा, इट कैन बी फाइनेंस, मतलब मोस्टली इट कैन बी फाइनेंस लीज आपका उसी की तरह, तो एक मैन्युफैक्चरर ने वो बनाया एंड देन आपका उसको लीज पे दे दिया, ठीक है। सेल एंड लीज बैक, यहाँ पे मैन्युफैक्चरर फर्स्ट, जैसे मैन्युफैक्चरर के द्वारा मशीन बनाया गया, देन उन्होंने उसको सेल किया, देन दे अगेन टुक बैक इट एज अ लीज, ठीक है। तो उन्होंने जैसे एक मशीन बनाया, सपोज दैट वर्थ रुपीज 10 करोड़, ठीक है, 10 करोड़ का ये मशीन आपका तैयार किया, देन इसको आपका उन्होंने सेल किया, ठीक है, सेल किया आपका किसी को, ठीक है, देन जिसको सेल किया उससे इन्होंने उसको लीज पे ले लिया, सो दैट इज सेल एंड लीज बैक। So under the sale and leaseback arrangement, the firm sell an asset that is owned and then lease to the same asset back from the buyer. This way, the lessee get the asset for use and at the same time it get cash also, ठीक है। तो इस तरीके से जो आपका काम करेगा। नेक्स्ट वन, लिवरेज लीज आपका, ठीक है। सो लिवरेज लीज इज द सेम एज डायरेक्ट लीज एक्सेप्ट the third party, the lender, is involved in the addition to the lessee and lessor, ठीक है। तो यहाँ पे लेसी लेसर के बीच में एक और पार्टी इन्वॉल्व हो गया, दैट इज लेंडर। वो आपका बेसिकली क्या कर रहा है, फाइनेंस कर रहा है, ठीक है। जैसे आपका इट इज सिमिलर टू डायरेक्ट लीज, जैसे एक ने आपका एसेट बनाया उसको लीज पे दे दिया, ठीक है। नाउ जब उसने एसेट बनाया फॉर द मैन्युफैक्चरिंग ऑफ दैट पर्टिकुलर एसेट, दे टुक लोन फ्रॉम द बैंक, ठीक है। द लेंडर पार्टली finances the purchase of the asset to be leased, the lesser टर्न टू बी बोरोवर, ठीक है। तो यहाँ पे जनरली क्या हो रहा है आपका, जैसे देयर इज अ XYZ कंपनी हु मैन्युफैक्चर दिस इक्विपमेंट्स, ठीक है, इसने आपका एंड ABC हु परचेज दिस पर्टिकुलर मशीन, ठीक है, जो आपका क्या है, आपका बायर है, ठीक है, ये आपका सेलर है, ठीक है। सो ABC हु परचेज दिस इक्विपमेंट फ्रॉम XYZ, ठीक है, XYZ से आपका टू परचेज दिस दे टुक अ लोन फ्रॉम द बैंक, ठीक है। तो ये आपका जो यहाँ पे बेसिकली जो चलेगा दैट इज कॉल्ड लिवरेज लीज आपका, ठीक है। इसके अलावा लीगल एस्पेक्ट ऑफ लीज, अगर हम लोग इनको बात करते हैं, ठीक है। सो लीगल एस्पेक्ट क्या है उसमें आपका, the definition of lease provided in transfer of property act and Indian registration act cover only the property not equipments, ठीक है। जो properties आपके हैं they are generally part of this, in absence of the separate law for equipment leasing, the provision relating to the bailment in Indian Contract Act may be considered to be applicable to equipment leasing contract। तो जैसे ये जो लीज एग्रीमेंट्स आपके हैं इनके ऊपर लीगल एस्पेक्ट की हम लोग बात करते हैं, ठीक है। इन केस ऑफ प्रॉपर्टी वी हैव ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट एंड इंडियन रजिस्ट्रेशन एक्ट, फॉर अदर देन प्रॉपर्टी फॉर इक्विपमेंट लीजिंग वी हैव इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट, ठीक है। जो लीज आपका कॉन्ट्रैक्ट बनेगा वो किसके अकॉर्डिंग आपका बनेगा, आपका इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के हिसाब से आपका उसको बनाया जाएगा, ठीक है। So, as per this act, the obligation of lessor and lessee are similar to those of bailor and bailee unless specified in the lease agreement, ठीक है। तो जैसे यहाँ पे आपका बेलर एंड बेली होता है वैसे यहाँ पे लेसर एंड लेसी होता है, उनके राइट्स आपका सिमिलर होते हैं, बट हाँ अगर कोई ऐसा स्पेसिफिकेशन है दैट विल बी पार्ट ऑफ योर लीज एग्रीमेंट, ठीक है। सो जीएसटी की अगर हम लोग बात करते हैं, जीएसटी ऑन लीज ट्रांजेक्शन, ये इंपॉर्टेंट पार्ट है, प्लीज ध्यान से सुनिएगा, ठीक है। So as per section 7 of CGST, Central GST Act 2017, the expression supply include
all the supply of goods or services or both, such as sale, such as sale, ट्रांसफर, बार्टर, एक्सचेंज, लाइसेंस, दिस, ठीक है। तो अगर ये सेल है तो इट लीज विल आल्सो कंसीडर्ड एज अ सेल, ठीक है, यहाँ पे भी हम लोग उसको कंसीडर करेंगे, ठीक है। सो बी मेड इन कंसिडरेशन बाय अ पर्सन इन द कोर्स ऑफ फर्दरेंस ऑफ बिजनेस। फ्रॉम दिस इट इज क्लियर दैट द लीज is covered within the meaning and scope of supply, तो इसको भी हम लोग आपका सप्लाई की तरह कंसीडर करेंगे, and it is taxable under GST, okay। GST does not differentiate between finance lease and operating lease। GST rate on lease transactions are under, जैसे दो आपके कंडीशन है, पहला नील, the rate on lease of industrial plot provided by the state government industrial development corporations or undertaking to industrial unit and leasing of agriculture एग्रो मशीनरी एंड वेकेंट लैंड्स, ठीक है। तो यहाँ पे अगर लीजिंग हो रहा है, जैसे होता है ना इंडस्ट्रियल आपका डेवलपमेंटल एरियाज आपके काइंड ऑफ एसीजेड आपका जो स्टेट्स के द्वारा होते हैं, तो वहां पे अगर आपका कोई लीज पे ले रहा है कोई कंपनी, तो वहां पे वो जनरली क्या रहेगा, जीएसटी विल बी निल, कि जिससे हम लोग कहीं ना कहीं वहां पे मैन्युफैक्चरिंग या एम्प्लॉयमेंट इन सब चीजों को सपोर्ट कर रहे होते हैं, ठीक है। दूसरा आपका टू केस में अगर हम लोग बात करें, तो सेकंड केस आपका बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड है कि जिस रेट से उस पर्टिकुलर बिजनेस में आपका जीएसटी लगता है, सेम रेट से आपका लीज पे भी रहेगा, ठीक है। GST on lease transaction which will be covered under the category of supply of goods and supply of services is chargeable at same rate on the supply of similar goods and services under the lease agreement also, ठीक है। तो अगर किसी में 18% है तो 18% के हिसाब से, अगर 5% है 5%, या 28 है तो 28 के हिसाब से, ठीक है। तो पहली चीज आपका यहाँ पे ये एक एग्रीमेंट है बिटवीन टू पार्टीज, तो उसको आपका टैक्सेबल बनाया गया अंडर जीएसटी। दूसरा, दो तरीके से, कुछ एरियाज आपका जहां पे नील रहेगा और कुछ एरियाज आपका जो अदर एरियाज हैं जिसमें जो करंट जीएसटी रिजीम है उनके जो नॉर्म्स है उन्हीं के हिसाब से जीएसटी अप्लाई होगा, ठीक है। जैसे जो अदर आपका सेल ऑफ गुड्स और सेल ऑफ आप सर्विसेज के ऊपर रहता है, ठीक है। इनकम टैक्स implications of lease agreements. So in lease transaction, the lessor is eligible for depreciation on the asset as he own the asset। ये हमने स्टार्टिंग में भी बात किया था, प्लीज ध्यान रखेंगे इसको। ये स्टेटमेंट ओरिएंटेड ना आपको बहुत सारे क्वेश्चन एग्जामिनेशन में देखने के लिए मिलेंगे। The lessee therefore will not be eligible to claim any depreciation in sale and leaseback transaction। Income tax rule permit depreciation on the sold asset depreciated value rather than the actual value of the transactions, क्योंकि हम लोग जब अकाउंट्स आपका बनाते हैं तो दैट इज बेस्ड ऑन एक्रूल बेसिस, तो यहाँ पे भी वही चीज आपका चलेगा, ठीक है। The entire lease rental are taxed under income of the lessor। तो जो उसको ईएमआई आपका या मंथली बेसिस पे जो रेंट आपका मिल रहा है लेसर को, तो दैट विल बी टैक्सेबल अंडर इनकम टैक्स रेजिम, ठीक है। The lessee is entitled to treat the rental as an expense, ठीक है। जो लेसी है आपका वो उसको एज ए एक्सपेंस आपका शो करेगा अपने प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के अंदर, या एज ए आपका जो अकाउंटिंग मेंटेनेंस होगा, ठीक है। तो ये जो आपका पोर्शन है। आखिरी चीज हम लोग पढ़ेंगे, अकाउंटिंग ऑफ लीज ट्रांजेक्शन इन बुक ऑफ लेसी। अगर हम लोग लेसी के बुक की बात करते हैं यहाँ पे, ठीक है, तो यहाँ पे आपका द डिस्टिंक्शन बिटवीन फाइनेंस एंड ऑपरेटिंग लीज एज फार as accounting treatment in the book of lessee is concerned has been removed by the Indian accounting standard 116। Indian accounting standard 116 prescribe the following in respect of accounting of lease transaction in book of lessee। क्या क्या चीजें हैं आपका, तीन कंडीशन। पहला, at the commencement date lessee shall recognize a right to use asset and a लीज लाइबिलिटी, ठीक है। तो एक राइट टू यूज उसके पास होगा। दूसरा, लीज लाइबिलिटी दैट मंथली जो पेमेंट आपका करने वाला है और दैट इज ट्रीटेड एज रेंटल एक्सपेंस, ठीक है। दूसरा, at the commencement date lessee shall measure the right of use asset at a cost also, ठीक है। थर्ड वन इज द कॉस्ट ऑफ राइट टू यूज एसेट shall be, जैसे द अमाउंट ऑफ इनिशियल मेजरमेंट ऑफ लीज लाइबिलिटी, जैसे 50,000 रेंट है तो 50,000। Any lease payment made at or before the commencement date less any lease incentives received, ठीक है। तो ये अगर आपका ऐसा कोई भी एडजस्टमेंट है, so that will be done। and any initial direct cost incurred by the lessee, जैसे installation and others, ठीक है।
any estimated cost to be incurred by the lessee in dismantling and removing the underlying asset, restoring the site on which it is located, or restoring the underlying asset to the condition required by the term and conditions of the lease, unless those costs are incurred to produce inventories. These lessee incur the obligation for those costs either at the commencement date or as consequences of having used the underlying asset during a particular period also. ठीक है, तो जैसे अगर हम लोग उसको डिसमेंटल कर रहे हैं या आपका कहीं ना कहीं जो भी ऐसे एक्सपेंसेस उसको दोबारा से आपका पहुंचाना, ये सारे एक्सपेंसेस वो आपका हो सकते हैं कि लीज एग्रीमेंट के टाइम पे भी डिसाइडेड हो या फिर आपका एंड में हो रहे हैं, जैसे जैसे कॉन्सिक्वेंसेज हो रहे हैं, चीजें आपके हो रही हैं, अकॉर्डिंगली देखें अकाउंटेंट। ठीक है, तो ये कुछ एरियाज आपका ये बहुत बार एग्जामिनेशन में पूछे जाते हैं, अपार्ट फ्रॉम द मेजर डिस्टिंक्शन बिटवीन अकाउंट आपका ऑपरेटिंग लीज एंड फाइनेंस लीज, राइट। सो दिस इज इट। तो गाइस बहुत ही छोटा सा यूनिट एंड बहुत इंपॉर्टेंट। इंपॉर्टेंट क्यों? क्योंकि आपने इसको बहुत डिटेल में पढ़ा होता है आई एन आई एफ एस के अंदर, ठीक है, वहां पे भी बहुत सारा इसके ऊपर क्वेश्चन रहते हैं, और एएफएम के अंदर थोड़ा सा अकाउंटिंग एस्पेक्ट के ऊपर क्वेश्चन रहते हैं। बट अभी पिछले 2-3 सेशन के अंदर आपका जो क्वेश्चन देखे गए हैं वो आपका विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू अबाउट द फाइनेंस लीज या ऑपरेटिंग लीज, या विच इज द करेक्ट डिस्टिंक्शन बिटवीन ऑपरेटिंग एंड फाइनेंस लीज, इस तरीके से अलॉन्ग विद द अकाउंटिंग एस्पेक्ट। तो ये आपका एरिया जो बार बार आपके एग्जामिनेशन में पूछे गए हैं, ठीक है। आई होप सबको ये क्लियर हुआ होगा। अगर आपका कोई भी डाउट होता है, कोई भी क्वेरीज है, सो यू कैन मेंशन योर क्वेरीज इनटू द कमेंट सेक्शन, आई विल डेफिनेटली गेट बैक टू यू। इसके अलावा आपका आरबीडब्ल्यूएम और पीपीबी के क्लासेस ऑलरेडी स्टार्ट हो गई हैं, ठीक है, उनको देखना स्टार्ट कर दीजिए। इंडियन इकोनॉमी मॉड्यूल सी एंड डी आई विल स्टार्ट वेरी सून, ठीक है, फ्रॉम नेक्स्ट वीक ऑनवर्ड्स, एंड देन ए और बी आपका दिशा मैम विल कवर ए एंड बी। तो इस तरीके से हम आपको सारे सब्जेक्ट फ्री ऑफ कॉस्ट आपका प्रोवाइड कर रहे हैं, ठीक है। आई होप यू गाइज एंजॉइंग दिस पर्टिकुलर कंटेंट। अगर कोई भी ऐसा डाउट है तो आप अपने डाउट भी हमारे साथ शेयर कर सकते हैं, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही करेंगे। दिस इज इट फ्रॉम माय साइड। थैंक यू फॉर वाचिंग दिस सेशन। आई विल सी यू टुमारो एट 7 PM डॉट, ठीक है। हर दिन आपका 7 बजे हम लोग ये सेशन करते हैं, मंडे टू संडे, ठीक है। विल नॉट टेक एनी ब्रेक फॉर जस्ट आफ्टर कंप्लीशन ऑफ दिस समरी सीरीज, मतलब इससे ज्यादा आपको पढ़ने की जरूरत नहीं है। देन विल कम अप विद द यूनिट वाइज एमसीक्यूज। तो इस तरीके से हम लोग रेगुलर चीजों को आपका रखने वाले, ठीक है। सो दिस इज इट फ्रॉम माय साइड गाइस। थैंक यू फॉर वाचिंग दिस सेशन। बाय बाय, टेक केयर ऑल, हैव अ नाइस डे, थैंक यू।